ٹیلی ویژن ہز مستقلی حوالہ سرکار سنجید کمیٹی ہند رپورٹ برہ کن ین پتہ یہ حتمی فیصلہ نین کابینہ وزیر جاوید احمد رانا سن بیان بی جے پی دور حکومتس مز عام لوک مشکلن مز ہین آمد ریاستی درجہ بحالی حوالہ کانگریس پارٹی ہز جدوجہد جاری نظام الدین بٹ سن بیان مغل شاہراہ ایک ہفتہ پتہ ٹریفک خطر بحال شاہراہس پہ شین تلنچ کاروی مکمل مسافرن احتیاط ورتاونس پہ زور شمالی کشیر کپوارس مز نار وارداتن مز اضاف کرناہس مز 4 رہائشی مکان خاکہ سر لچھ واد سامان سورس مز تبدیل شمالی کشیر منبل ہندوارس مز سڑکن ہز حالت خستہ حال مقامی لوک آمت مشکلن مز ہن ضلع انتظامیہ مداخلت اپیل السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ صبح ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہز تفصیل مغل شاہراہ یہ تازہ شین پینہ پتہ الہ پلہ پتمو 7 دہو پہ آمدورافت بابت بند کرنے آمز تو انتظامیہ طرف وت پہ ٹریفک بحال کرنے حوالہ کوشش جاری تجہ آز شاہراہس پہ ٹریفک بحال کرنے آمد یل زن ذمہ داروں طرف وت پہ سفر کرنے والے لوکن ون آو تم گھن سفر کرنے برہ متعلقہ محکمہ ست رابطہ کریں یت زن تمن سفر کرنے دوران کن قسمک مشکل ویترن پین یپر مسافرن تہ ہدایت دن آمت تم گھن سفر کرنے دوران احتیاط ورتن یتھ نہ کانٛہہ ناخوشگوار واقع پیش یی کابینہ وزیر جاوید احمد رانان مختلف محکمن مز کام کرنے والن ڈیلی ویجر ملازمن تو دویمن کیجول لیبرن حوالہ کت کران یہ اخ بوڑ مسئلہ تو یہ مسئلہ انزرانس حوالہ سرکار سنجید یل زن تمو وون زِ امہ حوالہ سرکار طرف کمیٹی تہ تشکیل دن آمز تو امید زِ جلدی یمن لوکن ہند مسئلہ حل کرنے یُتھ یہند مشکل دور سپدن دیکھیے وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے ٹیلی ویژن کا بڑا ایشو ہے یہاں لاکھوں کی تعداد میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں سکلڈ لیبرر ہیں ان پیڈ ورکرز ہیں کیجول لیبررز ہیں اور آج ایک نیا جو ہے وہ ایک کل میرے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا تھا کہ ہم ڈراپ آؤٹ کیجول لیبررز ہیں تو اس قسم کے ہمارے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈراپ آؤٹ کیجول لیبرر تو کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی لیکن اب ہے ایک سلسلہ کیونکہ یہاں اس مسلسل 10 سال میں اس ریاست کی جو تباہی ہوئی کوئی پولیٹیکل یہاں سرکار نہیں تھی بالخصوص 5 اگست 2019 کے بعد اور ان چیزوں کی طرف کسی نے دیکھا نہیں تو آنریبل چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور وہ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے جلدی انشاءاللہ وہ آ جائے گی اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ڈیلی ویجز کا ایشو جو ہے 2026-27 جو ہے جو ان کے لیے ایک اچھا سال ثابت ہوگا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں سری نگرس من کانگریس پارٹی طرف پریس کانفرنس ہند سنز کرنے آمد یا دوران پارٹی سینئر لیڈر نظام الدین بٹ سند طرف مرکزی سرکار چن پالسین ہز نقطہ چینی کران ون آو مرکزی سرکار طرف پریت رنگ لوک تنگ کرنے کوشش کرنے یوان تو یہ وجہ کانگریس پارٹی طرف ملکس مز اخ پروگرام تشکیل دن آمت یا دوران لکن مرکزی سرکار چن یمن غلطین پالسین حوالہ مکمل زان دن یی تمون مزید ریاستی درجہ بحالی حوالہ روز کانگریس پارٹی ہز جدوجہد لگاتار جاری آپ کے مادھیم سے ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ یہ سرکار جتنے بھی قوانین بنا رہی ہے نہ صرف عزت سامان لینے کی کوشش کی انہوں نے ہر جگہ نہ صرف انہوں نے آئین کے تقدس کو پامال کیا اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی کھوکھلا کرنے کی کوشش کی نہ صرف ادارے جو تھے جمہوری ادارے مضبوط ادارے نہ صرف ان پہ قدغن لگایا انہیں کمزور کیا
बल्कि अब ये इक्तिसादी बदहाली को छुपाने के लिए गरीबों के पेट पे भी लात मार रहे हैं। दिही इंडिया जब बर्बाद होगा खुदा ना खास्ता, तो सारा हिंदुस्तान बर्बाद होगा। जहाँ तहजीब पे हमला था, जहाँ सिविलाइजेशन पे हमला था, कल्चर पे हमला था, तशक्कुस पे हमला था, वहाँ अब एक कमज़ोर इक्तिसादियात को लेके ये गरीबों के हित में भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। एक पहलू ये है। दूसरा स्टेट स्पेसिफिक जो मामला है, जो इनके एटीट्यूड से जुड़ा है। पहला भरपूर वार बीजेपी ने जम्मू कश्मीर पे किया, रियासत को तकसीम किया, तारीख को मसक किया, तशक्कुस को बर्बाद किया, आइडेंटिटी हमारी ख़त्म की। जो एम्पावरमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट थी इंडियन यूनियन में, फेडरलिज्म के हवाले से या हिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग है। कुपवारिस मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सन्स कर आमुत। यथ दौरान पार्टी हंद जिल सदर हाजी फारूक सिंह तरफ मनरेगा स्कीम हवाले कत कर वन आज युद्ध मुल्कस मज लक्षवाद लुक अम सत रोजगार हासिल करान ताम मरकजी सरकार तरफ अत मज तब्दीली आन यम सत लुकन हंद रोजगार मुतासर सपद। कांग्रेस पार्टी तरफ अम हवाले लुकन जान दिन बाबत मुहिम शुरू करना आमज है, जो बाज़ाब्ता हमने जिला हेडक्वार्टर से शुरू बाज़ाब्ता किया। 12 जनवरी से बाज़ाब्ता 1 डे हमारा फास्टिंग सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रहेगा। 12 से 16 फरवरी तक लगातार ये हमारा प्रोग्राम रहेगा, ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर। इसके विरोध में हम ये चाहते हैं कि जो मनरेगा महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का नारा दिया था, जहां हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जिनको इसके साथ बाज़ाब्ता वास्ता था, आज बीजेपी सरकार ने जबरदस्ती में इसको वापस लिया और इसको दूसरा नाम बदल दिया। एमजी ये राम जी के नाम पर। हमें नाम से कोई आपत्ति नहीं है। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, जिसके मजलिस में पूरे दुनिया के लगभग 140 मुल्कों में है, उस गांधी की तौहीन करना ये छोटी आसान बात नहीं है। हमारा सेकुलर मुल्क जिसमें हर किस्म के लोग रहते थे, बदकिस्मती से जब से बीजेपी की सरकार यहाँ बनी, पिछले 11 साल से जब से एब्रिगेट हुआ यहाँ, एब्रिगेशन के बाद जितने इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए, तो हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। जितने भी स्कीमें थी जो कि यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड ने आवाम के लिए लाई थी, पूरी मुल्क में इन्होंने इनका नाम बदल दिया और इनका पैटर्न भी बदल दिया। आज सीधा ये हमला एक मजदूर के पेट पर है, एक किसान के पेट पर है, एक बेरोजगार के पेट पर है, जो कि 90% जिसको सेंटर देता था, 10% स्टेट देता था। मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर एक गरीब स्टेट है, इन्होंने क्या अपने जो इन्होंने खदखाल इस स्कीम के किए। अब ये हमारे पास गारंटी इंप्लीमेंट स्कीम था, 100 दिनों का हम रोजगार दे सकते थे। अब ये गारंटी इंप्लीमेंट जनूबी कश्मीर जिले पुलवामिस मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सन्स कर आमुत। यथ दौरान पार्टी जिम्मेदारों तरफ मरकजी सरकार नुक्तचीनी करान वन आज ये मौजूदा मरकजी सरकार तरफ जमहूरी निज़ाम कमजोर करने कोशिश कर तथा मनरेगा स्कीम हूँ खदोखाल तब्दील कर आमुत, यम लक्षवाद लुक मुतासर सपदन। ये जन अमवाल कांग्रेस पार्टी तरफ मुल्कगीर मुहिम शुरू करना आई, युद्ध जन लुक बाखबर सपदन। इस तरह से जमहूरी इदारों को ये कमज़ोर करते हैं, उसी तरह से ये लोगों को भी डिसएम्पावर करना चाहते हैं। और इनकी कोशिश है कि जो मनरेगा प्रोग्राम है इसको बदल दिया जाए। और बल्कि ये मैं कहूँगा कि जब से ये हुकूमत मरकज़ में इक़्तिदार में आ गई, तब से इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसमें जो फंड्स वागुजार किए जाते थे, उन फंड्स को कर्टेलमेंट की जाती थी। और आज आप देख रहे हैं कि लोग जो उन्होंने काम किए हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। मैं इसमें ये भी बता दूंगा कि 2016, 17 और 17-18 में जो लोगों ने काम किए हैं उनके पैसे अभी भी जो हैं रिलीज नहीं हो रहे। और आज जो इन्होंने एक बहुत ही घिनौना कदम उठाया कि ये इस प्रोग्राम को बंद करने जा रहे हैं और उसके बदले में एक दूसरा प्रोग्राम ला रहे हैं कि मनरेगा बचाओ संग्राम जो आंदोलन पूरे देश भर में चला, उसका हम हिस्सा है। हम हर वार्ड में, हम हर ब्लॉक में, हम हर पंचायत में, हम ग्राम सभा, चाहे अंक्शन हो, जितने भी सारे सर्कुलर्स आए हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, हम हर सड़क पे आप लोग देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की ये डिमांड है, मनरेगा बचाओ। इसके साथ में जैसे आप साथियों को पता है कि
10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ और 10 साल के काफी मसाइल देखने को मिले। 10 साल के इस चुनाव के बाद माननीय मुल्क के प्रधानमंत्री, माननीय मुल्क के गृह मंत्री ने जो वादा दिया था पूरे देश भर के वासियों को और खासकर जम्मू कश्मीर के आवाम को कि हम रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। पहले रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो भी जम्मू कश्मीर आवाम ने माना, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन। शुमाली कशीर अलनूर कॉलोनी सोपरस में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तरफ प्रोग्राम संस कर यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करन इन खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे कहिया लोग पार्टी में शामिल सपे तक पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालिहाना इस्तकबाल कर आमुद। जन वर्करन पे जोर दिन तम गसन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाबत काम करें जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी से वाबस्त सपदन। थी यहाँ पे सोपोर के जितने भी इलाके हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं उनमें सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। इंशाल्लाह ये बड़ी ग्रैंड आज बड़ जबरदस्त ये जॉइनिंग यथ डिफरेंट एरियन हंद गामन हंद लूख वनकस आए। इंशाल्लाह अम पे ब्या बड़ बार जॉइनिंग सह करो इंशाल्लाह। यह बेसिकली गोल्डन पीरियड यथ वो गोल्डन एरा जो हमने देखा है वो 2002 पे गो स्टार्ट मुफ्ती मोहम्मद सईदीन टाइम तथ बह वन पन लफ्जन मज सह सान यूथस खतर गोल्डन पीरियड तम कर हिस्ट्री कायम। इंशाल्लाह रूद तथी पे कि मुफ्ती सईदीन एम तो ड्रीम तम सुंद यह कि कशरन गोस इज्जत मिलन तो वकार मिलन। इंशाल्लाह अगर तथी पे पको ईमानदारी सान यम MLA साहिबान बन लीडर पगह अमिस कर गरीब आवाम की खतर काम करें न कि पन्नो मुफादो पन्नो गर्जो खतर। गरीब लूकन हज काम करें तिहज खदमत करें सू असल सियासत। बाकी कुन पार्टी सह न तजाद न कह चीज प्रत कुन पार्टी पज गरीब अवामुक सोचन सू मुफ्ती साहबन तू महबाजी हूं सू मैडम वनकस यम पन लाइफ कर मतलब प्रत कुन गरस वस यम सात हालात खराब सह गर मज JNK मज योत महबूबा मुफ्ती वस तम कोर अंडरस्टैंड सशरन हज दर्द पेन सह पेन गए दूर तम सात मुफ्ती साहबन टेक ओवर कोर मज म्यूज नौ आज़ादी नौ बहार म्यूल कशरस यूथस जवानस बस बाकी कहें। मुनबल हंदवार के लोगों तरफ शिकायत बावन वन आमुद मकामी सड़कें खस्ताली हवाल कहिया फिर हुकामन जान दिन आए तहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुनबल हरियल तो अंद पेक इलाकन मज रोजन वाले लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग कर आमुद सड़कें शोर पर हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन इन इलाकन मज रोजन वाले लूकन राहत वातनान यी। रोड वो यह रोड शान पे तालागे मुनबल तम यह रोड यह बिल्कुल खस्त यानी अत वन कि यह कुन काबिल ये कि जन काफ़ी कोशिश करे अगजन PMGSY हंदवारा सुपरवाइजर साहब JE साहब AEE साहब या चाहे सह R&B डिवीजन हंदवारा ये कि जन काफ़ी बार मे तिमन सत कोशिश कर चाहे फोनिंग कंटेक्ट कोर या इत कन बह तिमन समख्यावस मगर तेन तरफ आव कह रेस्पॉन्डा वनुक तामत कहें। ये कि तुम वुचान कि कत्या दब द्रन आब ये सड़क पे कि यह बिल्कुल मतलब यह कुन काबिल ड्रेनेज सिस्टम ये कुन या बंड या मैगडमाइजेशन या कह दलील क्या वजूहत कि डिप्टी कमिश्नर कुपवारा या SSP हंदवारा या तहसीलदार कलम आबाद तिमन अदबन गुजारिश करान क्या वजह कि ये इलाकस हर वक्त नाइंसाफी कर तिक रोड फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन रोड हेल्थ इथे कन बैंक ये सुविधा बाकी वन डेवलपमेंट कर। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। तो मेरा मानना यह है कि लंगेट से लेके मुनबल तक कम से कम 15 से लेके 20 किलोमीटर का फैसला है। इससे PMGY में मतलब ये PMGY जो स्कीम है उस दायरे में लाया गया। लेकिन 5 साल से मैं भी देख रहा हूँ, 10 साल से मैं भी देख रहा हूँ, आप भी इस रोड पे चल रहे हैं, जितने भी मिनिस्टर लोग हैं, चाहे हमारे कंसर्न MLA साहब है, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है बार बार आती रहती है,
इतनी खस्ता हालत है कि इस वक्त गाड़ियों को ब्रेक भी देना ब्रेक का मसला है। ब्रेक देते हैं तो शायद उसमें जितने भी लोग होंगे उनको परेशानी का सामना करना पड़े। इतने खड़े हुए हैं, इतने रोड खराब हो चुका है। गाड़ी को भी नुकसान पहुंचता है और लोगों को जो उसमें बीमार होता है उसको भी नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है कि जो बीमार होता है गाड़ी में उसको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर इस है खुसन जो लंगेट से लेकर हरिल तक रोड है या हंदवाड़ा से लेकर मोहनबल तक जो रोड है, तो इसमें बहुत जगहों पर वो डिचेस हुए हैं, उनकी फिलअप करने की ज़रूरत है, ताकि आजकल जो लड़कों को कल ट्यूशन पर जाना पड़ता है, मतलब कोई बीमार होगा कुछ होगा, तो रोड की हालत बहुत जगहों पर बहुत खस्ता हाल है। तो इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, ना एमएलए ध्यान देता है, ना डीडीसी ध्यान देता है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि इन जगहों पर चेकअप करें। खुसन एक बड़ा मामला है हमारा हरिल ददकुल का रोड जो है, वो बहुत दफ़ा सरकार की नाज़रीन खबरनाम से जारी यासने वक्त जारी वक्फ मितिवावन करन मगरा मकदम सितंबर वरी 2014 मज ओखो पुलवामिस मज दरिया छन बंड तमीर करने हवाले का संजीद कदम तुलना आमद यम मकामी लोग आवलनस मज हेनश आमद। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग कर आमद जे बंड दोबारा तमीर करने हवाले गसन कदम तुलने yin युत जन लुकन मज पौध सपुद तशवीश दूर सपदे। काकपुर वोट पे पेंसिल फैक्ट्री निश बंड तुलमुत नीर वो अम ब्रो तमन तुल बंड नीर सहलाब सत आब हुरो वोत तम दो तुल आब बंड नीर वन अत बंड बचे तो अमुक 50 कम अगर खान सन यह ग पूर वा नसब शहरस वा अमुक आब बचे तो बंड सतम पे आब हुर मकान वटान खलान बिस्तर चालून गो आब हुर ब्रो क्या खतर खतर पोर मकान अकिस पोरस पे आब ग आब खस और सह अकिस पोरस पे पे मजबूर चलने खतर इसलिए अगर थोड़ा सा मरम्मत कर पे गुजारिश वाले सेक्यूल के ब्रो ब्रो पे नाव वाला लगे तम चक्कर 7 फुट स्रोन ग पे बंड तुलान बोन ये बंड नीर ये बंड बुथ पकान 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 तल तल बंड यह अपोर ग अगर अपरम साइड तुलान और अपरम साइड ये वोक साइड बड़ प्रॉब्लम सेक्यूल क्या सोन मान क्या कर वोक पे जनाब वो यन पे खो 14 मज सहलाब तन पे वोत अपील कर गवर्नमेंटस सेक्य वालों तोनमुत सितम तुलित यमो बनो 2 फुट यह सनर करो गवर्नमेंटस वारिया लट अपील यी तो ये क्रिएट योर अगर ये बंड ग 30 गांव खत्म योर रोजान कह सहारे तम दह 2 पोरन आब आज डेंजरस मजे या गवर्नमेंट कह गौर कर और सेक्य वाल तम 2 फुट कर सनर बंड बसान सोरे जनाब ऊर खत जनाब अपील कर गवर्नमेंटस कर मेहरबानी कर मरम्मत वो 4 रेत मुतालबा कर कह गौर कर मेहरबानी कर मेहरबानी अपील कर कर मरम्मत तकरीबन ये 50 गांव योर 50 गांव योर 50 गांव चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ मज 59 इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल सज कर आमुत ये मज कश्मीर यूनिवर्सिटी सत वाबस्त तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करना आए तक कश्मीर यूनिवर्सिटी सत वाबस्त तलब इलमो तरफ शानदार कारकर्दगी हुंद मुजाहिर करना आमुत यम बाबत यम अवार्ड सत नवाजना आए। लोहरी हुंद त्यौहार पेश नज़र ये जमकन बाजारन मज रौनक वचनश तो लुक खरीदारी मज मसरूफ वचनश तक दुकानदारों तरफ वन आमुत भाई पत काल प्रथ कह त्यौहार मजहबी अकीदत एहतराम तो चकचाव सान मनान ताम मौजूद दौरस मज लुक मगरबी तहजीब सत मुतासर सपदमत यम किन त्यौहार मनाने कन तौर तरीकन मज तब्दीली वचनश तो हर साल की तरह लोगों ने अपने अपने तरीके से लोहड़ी मनाते हैं। कोई हार पहनाता है, कोई सामान बेचता है, कोई गिफ्ट बेचता है, अपनी बेटी को बेचता है, सिस्टर को बेचता है। ये ऐसे ही सिलसिला चला रहता है।
तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि सभी खुशी से लोहड़ी मनाएं, कोई बैर ना करें। तो और लोहड़ी के दिन तो जैसे कि लोहड़ी के दिन अर्घ उर्घ भी दिया जाता है, ठीक है, लोहड़ी जलाई जाती है। तो उस दिन के नादा लोहड़ी खत्म होती है, फिर उसके नेक्स्ट अगले दिन नया साल चढ़ता है, उसको कहते हैं मकर संक्रांति। लोहड़ी को आता है एक तो मूंगफली रेवड़ी गचक चलती है, तो यही ज़्यादा लगता है। और के अंदर गचक आती है, एक पतली गचक आती है, बहुत तिल वाली गचक होती है, उसका भी फैशन बहुत है। आजकल गिफ्ट पैक बन के आ रहे हैं, जैसे कि ये देखो ये डब्बे लगे हुए हैं, गिफ्ट के डब्बे लगे हुए हैं, ये भी के अंदर गिफ्ट में जाते हैं। जो हमने वक्त वो देखा है वो हमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। पहले क्या होता था हमारे टाइम में, जब हम आज से 20-25 साल हो गए या 10, इतना बढ़िया वातावरण होता था लोहड़ी के त्योहारों में। कहाँ हर गली में छज्जे वगैरह जाते थे, लोहड़ी मांगने जाते थे, एक परंपरा थी जिसको कई सालों से निभाया जा रहा था। लेकिन आज थोड़ा सा दुख से ये कहना पड़ रहा है कि ये बच्चों के ऊपर या तो पेरेंट्स की वजह से कोई ऐसा प्रेशर है, ना उनको प्रॉपर संस्कार मिल रहे हैं, चाहे वो उनको आध्यात्मिक हो, चाहे वो त्योहारों के प्रति हो। त्योहार भी उस तरीके से नहीं मनाए जा रहे। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी कमी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा लोगों को होप रहती है कि त्योहारों की वजह से हमारी जो है बिजनेस थोड़ा सा चलेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कमी तो है, फीका तो रहता है सर। ये जो त्यौहार है, जब भी ये आता है, खासकर जनवरी का महीना जिसको हम लोहड़ी का महीना बोला जाता है, काफ़ी ठंडा होता है। तो ये 31 तक तो जाएगा, लेकिन उसके बाद में भी थोड़ा बहुत जो है ठंड जो है वो थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। तो सारे लोग जो हैं बहुत खुश हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए। और हर चीज़ जो है, जो खासकर ये जितना भी हमारा लोहड़ी में जो मनाया जाता है, उसको अर्घ दिया जाता है, आग जलाई जाती है, और एक बड़े धूमधाम से उसको मनाकर और उस लोहड़ी के त्यौहार का नमन किया जाता है। वाली कशीर मज ये खुश्क मौसम आसने किन दह सर्दी मज इजाफ सपदान तत जमिस मज ते दोहस नब अबर आलूद तो शदीद सर्दी सहित लुक आवलिनस मज हेन आमद यल जन सर्दी नश बचने बापत जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलातन हुंद खूब इस्तेमाल अमल मज अन्न यह कत पान लायक जे वादी हिंद लुक वंद कालस दौरान जुम तत यम वरी जुमिस मज ते सठा सर्दी महसूस कर यम किन लुक मुश्किल मज हेन आमद। से बड़ा बहुत ही ज़्यादा सर्दी है यहाँ को। बाइक वगैरह तो फिलहाल ग्लव्स के बिना तो बंदा चला ही नहीं सकता है। और ठंड इतनी है, कल मतलब कि दिखता भी दिन में भी कुछ नहीं दिखता है, इतनी ज़्यादा ठंड है। हाँ जी, जगह जगह आग जला के बंदे गुजारा कर रहे हैं। ये कि घर से आप निकलते हो टोपी वगैरह, ग्लव्स वगैरह, मफलर वगैरह साथ में लेके निकले, और बाइक पे मतलब हेलमेट लगा के निकलेंगे। बहुत इतनी ठंड है, बहुत सारे लोग इस टाइम पे बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़ रहे हैं। तो जम्मू सिटी में एक बारिश नहीं हो रही है, 2-2.5 महीने हो गए, उसकी वजह से ज़्यादा ठंड है। तो खुश्क, बिल्कुल खुश्क, बिल्कुल खुश्क। मतलब कि पानी तो जब बारिश ही नहीं होगी तो धुंध तो पड़ती रहेगी। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड है जम्मू में। सर्दी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ जम्मू सिटी में भी कोहरा है, गांव देहात में भी कोहरा है, और इसमें बहुत सर्दी का ये बहुत हार्ड मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा गिर रहा है। इसके लिए जगह जगह लोग आग जला कर ताप रहे हैं, और यही सर्दी का बहुत ज़्यादा ही कुछ कहर ज़्यादा ही दिख रहा है। इससे क्या बीमारियों के सामने? हाँ, इससे सर्दी जुकाम हो रहे हैं लोगों को। बारिश हुआ नहीं, बारिश होता तो चलो तो कुछ राहत मिलता। और फिलहाल जो है वो सर्दी जी, वही आग उग ताप रहे हैं जला कर, घर में हीटर या बाहर में आग जलाकर, जो रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, जो भी है बाहर। आपने दस्ताने डाल के रखे हैं? हाँ जी, कहाँ चल सकते हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं तो बगैर दस्ताने को तो चल नहीं सकते हैं। बाइक चलाते हैं तो थोड़ा देर में ही लगता है कि हाथ एकदम कट के गिर गया जैसे ठंडे के मारे। तो नाज़रीन, कोशिश खबर नाम होती है खुश रोजू, खुशहाल रोजू, फी अमान।